So let's study now the Gauss theorem. Okay, the Gauss theorem. Gauss theorem. आता हा गॉस थेरम काय आहे बघा. गॉस थेरम जो आहे इट इज रिलेटेड टू ओनली क्लोज्ड सरफेस. ओके, जो गॉस थेरम आहे तो काय आहे, कशाशी रिलेटेड आहे, इट इज रिलेटेड टू ओनली ए कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेस. ओके, and by using Gauss theorem we can find out electric flux over completely closed surface only. Okay, आणि गॉस थेरमचं स्टेटमेंट काय आहे बघा. स्टेटमेंट इज लाईक दिस. The electric flux over a completely closed surface electric flux over completely closed surface is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times charges enclosed by that surface. Okay, so this is the statement of Gauss theorem. Electric flux over a completely closed surface. So by using Gauss theorem we can find out electric flux over a completely closed surface only. Okay, completely closed surface, इसका मीनिंग क्या निकलता है, उस सरफेस में कोई भी होल नहीं होना चाहिए, मतलब अंदर का एयर बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर का एयर अंदर नहीं आना चाहिए. इस तरह से वो कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए. एंड कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेसवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किती असतं, 1 by epsilon naught times charges enclosed by that surface. Okay, so for example, suppose this is a closed surface of any shape, completely closed surface, and suppose there are charges. Okay, this is completely closed surface and there are charges such as q1, q2, q3 up to qn inside that closed surface. So according to Gauss theorem, okay, so by Gauss theorem, according to Gauss theorem, इस क्लोज सरफेस पर फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होता है, देखिए 1 by epsilon naught times charges enclosed by that surface, that is algebraic sum of all the charges, q1 plus q2 plus q3 up to qn. This is the Gauss theorem. Electric flux over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times charges enclosed. Algebraic sum of charges ऐसा इधर लिख सकते हैं, 1 by epsilon naught times algebraic sum of charges enclosed by that surface. 1 by epsilon naught times algebraic sum of charges enclosed by that surface. म्हणजे क्लोज्ड सरफेसवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आतमधले चार्जेसच फक्त प्रोड्यूस करतात. ओके, आणि ते किती फ्लक्स असणार आहे, 1 by epsilon naught टाइम्स अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी चार्जेस. ओके, म्हणजे क्लोज सरफेसच्या बाहेर एखादा चार्ज असेल तर त्याच्यामुळं या क्लोज सरफेसवर अजिबात फ्लक्स क्रिएट होत नाही. क्लोज्ड सरफेसवर फ्लक्स फक्त आणि फक्त त्याच्या आतमध्ये असणाऱ्या चार्जेसमुळेच तयार होतं, बाहेरच्या चार्जेसमुळे तयार होत नाही नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक आहे, let's see one more example. Suppose these are the number of surfaces like this. Okay, this circle is this is a sphere. All these are closed surfaces A, B and C, and charges are like this.
5 coulomb minus 3 coulomb 2 coulomb 4 coulomb minus 3 coulomb plus 6 coulomb. After that 7 coulomb and so on. So charges are placed like this. So we are going to find out electric flux over surface A, B and C. So according to Gauss theorem, flux over surface A is equal to 1 by epsilon naught time algebraic sum of all the charges inside that surface A. अभी surface A के अंदर कितने charges है देखिए, 1 by epsilon naught times algebraic sum of the charges, that is 5. Okay, it is 5 plus 2 plus 4 plus 7. So it is coming to be 18 by epsilon naught. Okay, 18 by epsilon naught. So flux over surface A is equal to 18 divided by epsilon naught का वैल्यू आपको पता होगा 8.85 into 10 raised to minus 12. तो ये कैलकुलेशन करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. सो अप्रोक्सीमेटली 2 आता है. 8.85 मतलब 9 लिया तो 18 डिवाइडेड बाय 9 मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज टू 12 वोल्ट मीटर. सो दैट इज द फ्लक्स ओवर सरफेस ए. नेक्स्ट, electric flux over surface B. Electric flux over surface B is equal to 1 by epsilon naught times. ओके, आता बीच्या आतमध्ये चार्जेस कुठले कुठले आहेत बघा. 2 -3 4 -3 2 -3 प्लस 4 -3 म्हणजे किती होणार बघा. हे -6 अँड +6 किती होणार 0. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर क्लोज्ड सरफेस B is equal to 0. After that, electric flux over surface C is equal to 1 by epsilon naught time charges enclosed by surface C, that is 7 plus 4 minus 3 plus 6. Okay, so 1 by epsilon naught in bracket 1 by epsilon naught in bracket किती होणार बघा. हे 14. So it is 14 divided by epsilon naught. Exact value काढायचं तर 14 divided by 8.85 into 10 raised to minus 12. Okay, so it is 1 point something 1.58 into 10 raised to 12 voltmeter. So in this way we can apply the Gauss theorem. तर गॉस थेरम काय सांगतो, कुठल्याही क्लोज सरफेसवरचं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किती असतं, अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस 1 by epsilon naught times algebraic sum of electric charges enclosed by that surface. Okay. Now one question on this Gauss theorem. Gauss theorem पर एक क्वेश्चन देखेंगे. अभी यहाँ पे क्या दिया है देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r is 5. ओके, यहाँ पे एक सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस एंड इसका रेडियस है स्मॉल एंड इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 है. अभी हमने यहाँ पे और एक स्फीयर ड्रॉ किया है, वन मोर स्फीयर एंड दिस हैज रेडियस ऑफ 2r. सेकेंड स्फीयर का रेडियस कितना है, 2r रेडियस है. नाउ यहाँ पे क्या होता है, अगर r रेडियस के स्फीयर पर फ्लक्स 5 है तो 2r के रेडियस पर फ्लक्स कितना बनेगा. ओके, क्या बता सकते हैं.
r रेडियस के स्पीयर पर फ्लक्स अगर फाई है तो 2r रेडियस के स्पीयर पर फ्लक्स कितना बनेगा? ओके, टू स्पीयर्स आर कॉन्सेंट्रिक विथ ईच अदर, दैट इज द क्वेश्चन। इसका आंसर क्या जाएगा बताइए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन स्पीयर ऑफ रेडियस r is phi, then electric flux on concentric sphere of radius 2r. Electric flux on sphere of radius r is phi. Okay, then electric flux on concentric sphere concentric sphere of radius concentric sphere of radius 2r is also phi. That is answer. म्हणजे 2r रेडियसचा जो स्पियर आहे त्याच्यावर देखील इलेक्ट्रिक फ्लक्स किती तयार होणार? फाय एवढंच तयार होणार ना. जास्त कसं तयार होईल? कारण हे बघा, आतला जो स्पियर है, अंदर का जो स्पियर है उस पर फ्लक्स कितना है? फाई है। अंदर का जो स्पियर है उसमें सपोज चार्जेस कितने हैं? क्यू चार्जेस हैं। तो ड्यू टू चार्जेस क्यू अंदर के स्पियर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। आता आतल्या स्पियर मध्ये जेवढे चार्जेस असणार तेवढेच बाहेरच्या स्पियर मध्ये चार्जेस येणार ना. चार्जेस कुठं चेंज होत आहेत? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किती असतं गॉस थेरम नुसार? 1/ε0 टाइम्स चार्जेस एनक्लोज्ड बाय दॅट स्पियर. मग स्पियर मोठा केला काय किंवा छोटा केला काय, आतले चार्जेस चेंज होणार आहेत का? आतले चार्जेस तेवढेच राहणार ना. आतला जो स्पियर आहे, आर रेडियसचा जो स्पियर आहे त्याच्यामध्ये चार्ज समजा क्यू असेल, तर बाहेरचा स्पियर 2r रेडियसचा जो आहे त्याच्या आतमध्ये देखील चार्जेस किती असणार? क्यू एवढेच असणार. आणि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर ए क्लोज सरफेसचा फॉर्म्युला काय असतो? 1/ε0 टाइम चार्जेस एनक्लोज. म्हणजे आतल्या स्पियरने जेवढा चार्ज एनक्लोज केलाय तेवढा चार्ज बाहेरच्या स्पियरने देखील एनक्लोज केलाय. ओके, सो therefore electric flux over the concentric sphere of any radius will also equal to phi. तेवढाच फ्लक्स तयार होणार आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त फ्लक्स तयार होणार नाही. Here area is going to change but electric intensity is going to decrease ना. हे बघा, इथं असं तुमच्या डोक्यामध्ये येऊ शकतं की आता आतल्या स्पियरची रेडियस आर आहे म्हणजे काय आहे? सरफेस एरिया कमी आहे. बाहेरच्या स्पियरची रेडियस जास्त आहे म्हणजे त्याचा सरफेस एरिया जास्त आहे. परंतु सरफेस एरिया जरी वाढला तरी इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी काय असते? चार्जेसच्या जवळ इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी जास्त असते आणि दूर गेल्यावर इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी कमी होते. आता फ्लक्सचा फॉर्म्युला काय असतो? इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी म्हणजे ए बार डॉट ए बार असतो. आता बाहेरच्या स्पियरचा सरफेस एरिया वाढेल परंतु चार्जेस पासून दूर गेल्यामुळे इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी पण कमी होणार ना. आणि जेवढ्या पटीनं सरफेस एरिया वाढतो तेवढ्याच पटीने इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी कमी झालेली असते. अँड देअरफॉर फ्लक्स रिमेन्स ॲज इट इज. कुठलाही फॉर्म्युला यूज केला तरी आन्सर काय चेंज होणार नाहीये. इट विल रिमेन ॲज इट इज. मतलब अंदर के स्पियर पर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है तो बाहर का कोई भी कॉन्सेंट्रिक स्पियर हमने लिया तो उस पर भी फ्लक्स कितना बनता है? फाई ही बनता है. ओके, बिकॉज चार्जेस इनसाइड द स्पियर्स आर नॉट चेंजिंग एट ऑल. मतलब अंदर के स्पियर में जितने चार्ज रहेंगे उतने ही चार्जेस बाहर के स्पियर में भी रहेंगे. Next, there is one more very important formula for the electric flux. One more very important formula for the electric flux. Okay, ये फॉर्मूला क्या है? देखिए, फ्लक्स ओवर ए सॉलिड एंगल ओमेगा. फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर a surface having
सॉलिड एंगल ओमेगा, इसका डायग्राम देखिए। सपोज देयर इज अ चार्ज क्यू, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है एंड यहाँ पे ऐसा एक सरफेस है, दिस इज वन सरफेस, ओके, एंड फ्रॉम द चार्ज टू द सरफेस यहाँ पे सपोज एक 3 डायमेंशनल एंगल बनता है। 3 डायमेंशनल एंगल को क्या बोलते हैं हम? सॉलिड एंगल बोलते हैं, ओके। सो सपोज इस सरफेस ने एट द चार्ज सपोज कितना सॉलिड एंगल किया है? ओमेगा सॉलिड एंगल किया है। म्हणजे लक्षात येते का बघा, हा एक क्लोज्ड सरफेस, सॉरी एक छोटासा सरफेस आहे आणि इथे एक चार्ज क्यू आहे, ओके। हा काय क्लोज सरफेस नाही, एक छोटासा ओपन सरफेस आहे, लक्षात घ्या। आणि हा इथं चार्ज क्यू आहे, या सरफेसनं या चार्ज क्यू बरोबर केलेला सॉलिड एंगल किती आहे? ओमेगा आहे सॉलिड एंगल। तर या सरफेसवर बाय गॉस थेरम या सरफेसवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किती तयार होणार? म्हणजे सॉलिड एंगल माहिती असेल तर, ओके। तर लक्षात घ्या, आता पूर्ण स्पियर असेल, पूर्ण स्पियर असेल तर फ्लक्स किती तयार होणार? पूर्ण स्पियर असेल तर फॉर कंप्लीट स्पियर, त्या चार्ज भोवती कंप्लीट स्पियर असेल समजा, फॉर कंप्लीट स्पियर फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट असणार, ओके। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कंप्लीट स्पियर असेल तर। गॉस थेरमचा यूज करायला लागलोय आपण आता, लक्षात घ्या, ओके। 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, म्हणजे चार्ज भोवती एक पूर्ण स्पियर काढला तर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट येणार। कंप्लीट स्पियर म्हणजे किती सॉलिड एंगल असतो? कंप्लीट स्पियर के लिए कितना सॉलिड एंगल होता है? टोटल सॉलिड एंगल फॉर कंप्लीट स्पियर, फॉर कंप्लीट स्पियर solid angle is equal to 4 pi. सॉलिड एंगलची कन्सेप्ट माहिती आहे ना? सॉलिड एंगल कंप्लीट स्पियरचा प्लेन एंगल असतो 2 पाय। प्लेन एंगल विचारत नाही मी, सॉलिड एंगल विचारतोय, ओके। फॉर कंप्लीट स्पियर सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 4 पाय। याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? यासाठी सॉलिड एंगलची कन्सेप्ट माहिती पाहिजे। 4 पाय, दिस मीन्स दैट कंप्लीट स्पियर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब 4 पाई सॉलिड एंगल के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बनता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट इज फॉर 4 पाई फ्लक्स कितना आता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देन फॉर ओमेगा, अगर सॉलिड एंगल 4 पाई नहीं है, कम है, ओमेगा है, तो फ्लक्स कितना आएगा? सपोज फ्लक्स कितना है? 5 डैश है, ओके। फ्लक्स कितना है? 5 डैश है। तो यहां पे हम डिवीजन कर सकते हैं। सो ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 पाई इज इक्वल टू 5 डैश डिवाइडेड बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो 5 डैश इज द फ्लक्स ओवर सॉलिड एंगल ओमेगा। सो 5 डैश कितना आ जाएगा? दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 पाई। That is your answer. This is a very important formula for solid angle. म्हणजे कंप्लीट स्पियर साठी, कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेस साठी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किती असतं? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, म्हणजे कंप्लीट स्पियरच्या आतमध्ये चार्ज क्यू असेल तर। कंप्लीट स्पियर साठी म्हणजे 4 पाय स्टेरेडियन साठी, याचं युनिट काय असतं? स्टेरेडियन असतं, माहिती आहे ना? एस आर। कंप्लीट स्पियर साठी इलेक्ट्रिक फ्लक्स असतं दॅट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मग 4 पाय कंप्लीट अँगल नसेल तर त्याच्याऐवजी ओमेगा अँगलचा सरफेस असेल त्याच्यापासून, ओमेगा अँगलचा, म्हणजे कंप्लीट स्पियर साठी कंप्लीट अँगल हा किती होतोय? 4 पाय स्टेरेडियन। तर 4 पाय स्टेरेडियन साठी, 4 पाय स्टेरेडियन साठी किती येणार? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तर ओमेगा साठी किती येणार आहे? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ओमेगा बाय 4 पाय। हा फॉर्म्युला एक आता लक्षात ठेवावा लागेल। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर ए सरफेस
which makes an angle which makes a solid angle omega. ओके, कारण काही वेळेला सॉलिड अँगल आपल्याला क्वेश्चन मध्ये दिलेला असतो किंवा काढता येतो सॉलिड अँगल. आणि सॉलिड अँगल माहिती असेल तर त्या छोट्याशा सरफेसवरचं इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थिअरमने या पद्धतीने फाइंड आउट करता येतं. ओके, इफ अ सरफेस इज मेकिंग an solid angle omega with the charge, then electric flux over that surface is given by formula q by epsilon naught omega by 4 pi. हा फॉर्म्युला लक्षात आला का बघा? पुन्हा एकदा सांगतोय, एक क्लोज्ड सरफेस नाही, एक छोटासा सरफेस आहे सपोज, चार्जच्या कुठल्या तरी एका साईडला आहे आणि त्या सरफेसनं चार्ज बरोबर केलेला सॉलिड अँगल समजा ओमेगा आहे, तर त्या सरफेसवर तयार झालेलं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किती असतं? क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट ओमेगा बाय 4 पाय असतं. क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट ओमेगा बाय 4 पाय असतं. ओमेगा स्टेरॅडियन मध्ये असतं, रॅडियन किंवा डिग्री मध्ये नसतं. सॉलिड अँगल जो आहे तो स्टेरॅडियन मध्ये असतो. ही थोडीशी सॉलिड अँगलची कन्सेप्ट तुम्हाला सांगतो, एक लक्ष द्या. देर आर 2 टाइप्स ऑफ अँगल. फर्स्ट इज द प्लेन अँगल. प्लेन अँगल किंवा याला काय म्हणतो? 2 डायमेन्शनल अँगल. ओके, 2 डायमेन्शनल अँगल कसा असतो? तर लाईक दिस, अँगल बिटवीन एनी 2 लाईन्स. Angle between any 2 lines, okay, which is denoted by theta. Angle between 2 lines which are having same original point, okay, same starting point, that is called as plane angle. प्लेन अँगलला आपण थीटा असं म्हणतो आणि प्लेन अँगलचा फॉर्म्युला काय असतो? प्लेन अँगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवायडेड बाय रेडियस. ओके, सो दिस इज आर्क लेंथ एस, दिस इज रेडियस आर. प्लेन अँगलचा फॉर्म्युला काय असतो? एस बाय आर. आणि प्लेन अँगलचं युनिट काय असतं? रॅडियन असतं एसआय सिस्टीम मध्ये. हे तर तुम्हाला माहित आहे, एस बाय आर, बरोबर आहे ना? प्लेन अँगल म्हणजे अँगल बिटवीन 2 लाईन्स. इट इज अ 2 डायमेन्शनल अँगल. इट इज कॉल्ड एज प्लेन अँगल और प्लेनर अँगल. And how to calculate plane angle? Arc length divided by radius. SI unit of the plane angle is radian. बाकीचे युनिट डिग्री वगैरे आहेत. ओके, नेक्स्ट इज द सॉलिड अँगल. सॉलिड अँगल इट इज कॉल्ड एज 3 डायमेन्शनल अँगल. 3 डायमेन्शनल अँगल. ओके, प्लेन अँगल जो आहे तो 2 लाईनच्या मध्ये असतो. तर सॉलिड अँगल जो आहे तो कुठं असणार आहे? सॉलिड अँगल कर्व्ड सरफेसच्या आतमध्ये असतो. सपोज दिस इज अ कोन. This one is a cone like this. Okay. आता हा जो कोन आहे, कोनचा याला काय म्हणायचं? एपेक्स म्हणायचं. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एपेक्स. ओके, तर एपेक्सच्या ठिकाणी हा आता कर्व्ड सरफेस असणार ना कम्प्लीटली, तिथे 2 लाईन्स नसणार आहेत. ओके, तर कोनच्या एपेक्सच्या ठिकाणी त्या कर्व्ड सरफेसनं केलेला जो 3 डायमेन्शनल अँगल आहे, दॅट इज कॉल्ड एज सॉलिड अँगल, विच इज जनरली डिनोटेड बाय ओमेगा. ओके, सॉलिड अँगल इज जनरली डिनोटेड बाय ओमेगा. ओके, दिस इज ए बेस एरिया. बेस एरिया त्याला आपण काय म्हणतो? ए किंवा डीएस असं म्हणतो. डीएस, सपोज हा एरिया किती आहे? डीएस आहे. डीएस. सॉलिड अँगल ओमेगा इज गिवन बाय फॉर्म्युला. जसं इथं आर्क लेंथ डिवायडेड बाय रेडियस असतं, तसं काय असणार आहे? तर सॉलिड अँगल ओमेगाच्या समोरचा सरफेस एरिया दॅट इज डीएस डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर असतं. ओमेगा इज इक्वल टू डीएस बाय आर स्क्वेअर. दिस इज बेसिक फॉर्म्युला फॉर द सॉलिड अँगल. हे बघा, प्लेन अँगलला कसं होतं? आर्क लेंथ डिवायडेड बाय रेडियस, त्याच्या समोरच्या आर्क लेंथ डिवायडेड बाय रेडियस होतं ना. तर त्याच्याऐवजी सॉलिड अँगलला कसं असतं? त्या अँगलच्या समोरचा सरफेस एरिया, कारण 3 डायमेन्शनल अँगलच्या समोर काय असणार आहे? सरफेस एरिया असेल ना. त्या अँगलच्या समोरचा सरफेस एरिया म्हणजे त्या कोनचा बेस एरिया डिवायडेड बाय आर नसतं, आर स्क्वेअर असतं. आणि याचं युनिट काय असतं? स्टेरॅडियन असतं. स्टेरॅडियन, त्याला शॉर्ट मध्ये एसआर आपण डिनोट करतो. आता कम्प्लीट प्लेन अँगल किती असतो बघा?
कंप्लीट प्लेन एंगल कितना होता है देखिए, कंप्लीट प्लेन एंगल मतलब आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ, कंप्लीट प्लेन एंगल मतलब कंप्लीट सर्कल का एंगल, कंप्लीट सर्कल का एंगल मतलब आर्क लेंथ 2 पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर, एंड देयरफॉर कंप्लीट प्लेन एंगल बनता है 2 पाई, कंप्लीट प्लेन एंगल। उसी तरह से कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना बनेगा देखिए, कंप्लीट सॉलिड एंगल मतलब कंप्लीट स्पीयर का एंगल, स्पीयर का एंगल, कंप्लीट स्पीयर का एंगल। तो स्पीयर का सरफेस एरिया कितना बनेगा, स्पीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो कितना आता है ये, 4 पाई आता है, 4 पाई स्टेरेडियन। ओके, सो इस तरह से प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंड देयर इज वन रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये रिलेशन क्या है देखिए, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस रिलेशन पर ही लास्ट जेई मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये रिलेशन क्या है देखिए, सपोज इस तरह से एक कोन है, मतलब सॉलिड एंगल कहां पे बनता है, कोन के एपेक्स में बनता है। सॉलिड एंगल कहां पे बनता है, कुठं सॉलिड एंगल असतो, कोनचा जो एपेक्स आहे त्या एपेक्सच्या ठिकाणी त्या कर्ड सरफेसनं तयार केलेला जो 3 डायमेन्शनल अँगल आहे, 3 डायमेन्शनल अँगल, कोनच्या आतमध्ये एपेक्सच्या ठिकाणी जो काय 3 डायमेन्शनल अँगल बनणार आहे, आता या कोनचा सेमिकोन अँगल थीटा असेल आणि समोर हा सरफेस काय असेल, समोर हा सरफेस असेल, तर या एपेक्सला तयार झालेला कंप्लीट सॉलिड अँगल किती असतो, तर सॉलिड अँगलचा फॉर्म्युला येणार आहे सेमिकोन अँगल, रिलेशन बिटवीन प्लेन अँगल अँड सॉलिड अँगल कसा आहे बघा, हा सेमिकोन अँगल म्हणजे प्लेन अँगल आहे थीटा। ओके, तर त्या कोनच्या आतमध्ये असणारा कंप्लीट सॉलिड अँगल किती असणार, म्हणजे सेमिकोन अँगल वरून कंप्लीट सॉलिड अँगल आपल्याला फाइंड आउट करता येतो। तर ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे दॅट इज 2 पाय इन ब्रॅकेट 1 मायनस कॉस थीटा। हा फॉर्म्युला, याचं डेरिवेशन काय बघायची गरज नाही, हा फॉर्म्युला एक तुम्हाला पाठ करावा लागेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड द प्लेन एंगल। अगर हमें प्लेन एंगल पता है तो हम सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, दिस इज वेरी यूजफुल इन दिस टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और लाइट का जो टॉपिक है उसमें भी ये यूज होता है। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल है, उसका यूनिट क्या है, स्टेरेडियन है। 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा क्या है, सेमी कोन एंगल है, ये याद में रखना है, कंप्लीट कोनिकल एंगल नहीं है, ये सेमी कोन एंगल। ओके, कोन की एक लाइन ने एक्सिस के साथ किया हुआ एंगल, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन्स है ना। कोन का जो सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ करो, एंड कोन का जो एक्सिस रहेगा यहाँ पे एक्सिस, उसके साथ किया हुआ प्लेन एंगल पता है, तो हमें वो जो कंप्लीट 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा वो कितना बनता है, 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो दिस इज द टोटल कंसेप्ट ऑफ प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल एंड रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। ओके, रिलेटेड टू प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सो कंप्लीट प्लेन एंगल मतलब एक सर्कल का प्लेन एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन रहता है। एंड कंप्लीट स्पीयर का, सर्कल का नहीं रहता, कंप्लीट स्पीयर का 3 डायमेंशनल एंगल मतलब कंप्लीट स्पीयर का सॉलिड एंगल कितना रहता है, 4 पाई स्टेरेडियन रहता है, 4 पाई रहता है स्टेरेडियन। एंड सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल में रिलेशन क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया, एनी डाउट इन दिस केस? सो वंस अगेन देखिए,
अगर सॉलिड एंगल ओमेगा है तो सॉलिड एंगल ओमेगा पर कितना फ्लक्स क्रिएट होता है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट ओमेगा बाय 4 पाई। ओमेगा कैसे निकालना है उसके लिए ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। फिर थीटा इज द सेमी कोन एंगल, सेमी कोन एंगल है वो हमेशा ध्यान में रखना है। थीटा इज द प्लेन एंगल, ओमेगा इज द सॉलिड एंगल। ओके, इसी पर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल की कंसेप्ट पर हम अभी एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मेंस एग्जाम। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लेफ्ट सर्कुलर एंड ऑफ द सिलेंडर, ओके, ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो चार्ज Q को कहां पे रखा है, ये जो सिलेंडर का लेफ्ट फेस है, सिलेंडर का लेफ्ट फेस उसके सेंटर पर रखा है। ऑफ लेंथ, इस सिलेंडर का टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर है एंड रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, जो कर्व्ड सरफेस यहाँ पे है उस पर हमें फ्लक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, फ्लक्स थ्रू दिस राइट प्लेन सरफेस निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू राइट प्लेन सरफेस। एंड फ्लक्स थ्रू राइट प्लेन सरफेस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सॉलिड एंगल निकालेंगे, राइट सरफेस का सॉलिड एंगल पहले हम निकालेंगे। सॉलिड एंगल कितना है, वो सॉलिड एंगल निकालेंगे। राइट का जो सरफेस है, राइट के सरफेस ने चार्ज Q के साथ कितना सॉलिड एंगल किया है ये पहले हमें निकालना पड़ेगा। सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस कंप्लीट सॉलिड एंगल इज ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है, ओके, 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार सॉलिड एंगल मिल गया तो राइट हैंड साइड का जो सरफेस, प्लेन सरफेस है, उस पर फ्लक्स मिलेगा, और उस पर फ्लक्स मिलने के बाद हम कर्व सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा